توہین عدالت کیس عمران خان نے معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کے بارے میں نازیبہ ریمارکس کی سماعت۔ عمران خان نے روسٹم پر کہا جو کہا جان بوجھ کر نہیں کہا، خاتون جج سے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ عمران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا آج ہم صرف چارج پڑھیں گے، ہم آپ کی بات کو سراہتے ہیں کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے لیے توہین عدالت کی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ عمران خان نے کہا 26 سال قانون کی حکمرانی کی کوشش کی۔ اسمبلی میں واپس جائیں، سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کو مشورہ، قومی اسمبلی سے تمام استعفے ایک ساتھ منظور کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے۔ اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے، پارلیمان کا احترام ہمارا فریضہ ہے جو ہم کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے استعفوں کے آرڈر پر ہم سے فیصلہ نہ لیں۔ منچر جھیل میں پانی کی سطح میں معمولی کمی، سہون انڈس ہائی وے پر کٹ کے باوجود یو سی بوبک اور جعفر آباد میں پانی کی سطح تاحال بلند، بھان سعید آباد فیڈر بھی بحال نہ کیا جا سکا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جانے والی کشتیاں بھی ضلعی انتظامیہ نے بند کر دیں۔ مختلف مقامات پر قائم ریلیف کیمپس میں سہولیات کا فقدان، پینے کا پانی ناپید، متاثرین میں گیسٹرو اور ملیریا کا مرض وبائی صورت اختیار کر گیا۔ ادھر چھٹو میں روشن آباد کے مقام پر پران ندی کا شگاف 37 روز بعد پر کر دیا گیا۔ زیر آب آنے والے چھوٹے بڑے دیہاتوں میں سیلابی پانی تاحال موجود، شگاف بند ہونے سے ایل بی او ڈی سیم نالے میں پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ۔ سیلاب نے بلوچستان کے ضلع صحبت پور کی حالت بگاڑ دی، 100 سے زائد دیہات ریلے بہا لے گئے۔ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے سڑکوں پر بے یارو مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ٹانگ سے محروم 10 بچوں کے باپ حاجی عظمت کا کہنا ہے پورا گاؤں سیلاب میں ڈوب گیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچے لیکن یہاں بھی کوئی دادرسی کرنے والا نہیں۔ سیلاب سے بحرین کالام روڈ مکمل تباہ، رابطہ پل اور سڑکیں بھی منہ زور سیلابی پانی کی نظر ہو گئے۔ علاقہ مکین اور سیاحت کے لیے آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سڑکیں نہ ہونے سے لوگوں کو ناہموار راستوں پر گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ مریضوں کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ، راستے بحال نہ ہونے سے علاقے میں کاروبار بھی ٹھپ، سبزیاں سپلائی کرنے والے زمینداروں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا۔ عوام کا حکومت سے بحرین کالام روڈ کی جلد از جلد بحالی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں آج بھی مصروف دن، اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز روانگی سے قبل بل گیٹس سے ملاقات کریں گے۔ یو این جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان میں سیلاب سے تباہی اجاگر کرنے کے لیے لگائی گئی تصویری نمائش کا بھی دورہ کریں گے۔ شہباز شریف جاپان، بیلجیم اور ملائیشیا کے وزرائے اعظم سے بھی ملیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فرانسیسی نیوز چینل کو انٹرویو، کہا کتنی ستم ظریفی ہے کہ کاربن کے اخراج میں 0.8% حصہ ڈالنے والا ملک موسمیاتی تبدیلی کا بدترین شکار ہے۔ سیلاب متاثرین کے اثر نو بحالی کے لیے $30 ارب امداد چاہیے۔ بھارت کے حوالے سے ایک سوال پر کہا کبھی سیکولر کہلانے والا ملک انتہا پسندوں کی جاگیر بن چکا ہے، جہاں مسلمان محفوظ ہیں نہ دوسری اقلیتیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی اینجلینا جولی کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ اینجلینا جولی نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو اپنی مکمل مدد کا یقین دلایا۔ اداکارہ نے سیلاب متاثرہ خواتین اور بچوں سے ملاقات اور گفتگو کی، متاثرین سے ان کی ضروریات بارے پوچھا۔ اینجلینا جولی نے سیوند اور دادو کے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا کشتی کے ذریعے دورہ کیا۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس، عمران خان نے معافی
माफी मांग ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खातून जज के बारे में नाजेबा रिमार्क्स की समाअत हुई। इमरान खान ने रोस्टम पर कहा कि जो कहा जानबूझकर नहीं कहा। खातून जज से माफी मांगने पर तैयार हूं, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है। जो कहा मैं खातून जज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, 26 साल कानून की हुक्मरानी की कोशिश की है, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, आज की समाअत का अहवाल कहिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो 3 अक्टूबर तक मौखर कर दी है। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही हामिद खान जो है वो रोस्टम पे आए और उनकी जानिब से जब वो बात करने लगे तो अदालत ने इमरान खान साहब को रोस्टम पे बुलाया और ये कहा कि आप जो है इमरान खान साहब आ रहे थे तो हामिद खान साहब ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर भी जो इसमें जो मेरे क्लाइंट हैं वो बात करना चाह रहे थे लेकिन अदालत ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी बात करें। इमरान खान साहब ने बात करना शुरू की और उन्होंने कहा कि 26 साल मैंने रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो स्ट्रगल की है और हमेशा अपने जलसों में भी यही बात करता हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा कि वो इंटेंशन नहीं थी, वो जानबूझ के वो अल्फाज वो नहीं कहे गए खातून जज के। उन्होंने अदालत में ये पेशकश की कि वो खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और जो उन्होंने कहा उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। जब इमरान खान साहब जो है वो ये बात कर रहे थे तो उसके बाद जो जजेस थे उन्होंने आपस में चंद सेकंड के लिए मशवरा किया और उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाना ये हमारा जो है वो मकसद नहीं है, ना मकसद था। हमारे मद्देनज़र वो अदलिया है, मातहत अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिसकी वजह से हम जो है वो ये कार्रवाई जो है वो चला रहे हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हम अप्रिशिएट करते हैं और जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए इसको मद्देनजर रखकर आपके खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो हम 3 अक्टूबर तक जो है वो मुअख्खर कर रहे हैं। आज फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यही अल्फाज आप एक एफिडेविट की शक्ल में, बयान हल्फी की शक्ल में अदालत में जमा करवाएं। उसके बाद साकिब, उन अल्फाज को क्या आप दोबारा से हमारे नाज़रीन के लिए दोहरा सकेंगे? क्या इमरान खान साहब की तरफ से मशरूत माफ़ी मांगी गई है और क्या उसमें अगर का इस्तेमाल किया गया है कि अगर उनके अल्फाज नामुनासिब थे तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं या फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है? इमरान खान साहब ने जो पेशकश की वो बुनियादी तौर पर उन्होंने माफ़ी का वर्ड जो है वो लफ्ज़ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए खातून जज से भी और अदालत से भी। उसमें जो अल्फाज इमरान खान साहब ने अदा किए उसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है वो नहीं था, अपॉलोजी था। अब वो इमरान खान साहब जो है वो जवाब जब जमा करवाएंगे उनकी जानिब से थोड़ा सा अदालत से पूछा गया कि क्या करना चाहिए तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आपने अपने बयान हल्फी में क्या लिखना है ये अदालत आपको नहीं बताएगी। आपकी जो कार्रवाई है वो हम मुअख्खर कर रहे हैं इस वजह से कि आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है। आपने जो कुछ कहा, जो माफ़ी मांगी, इस पर अदालत जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है लेकिन 3 अक्टूबर तक जो है वो कार्रवाई मुअख्खर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को अब अदालत जो है वो इस पर फैसला करेगी। इमरान खान साहब जो एफिडेविट, जो बयान हल्फी जमा करवाएंगे उसको मद्देनजर रखकर अदालत जो है वो इस केस के फर्दर प्रोसीड करने के हवाले से जो फैसला करेगी। जी तो साकिब बशीर, ये कहिएगा कि आज की समाअत से कबल सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की गई इमरान खान की जानिब से? आज इमरान खान साहब जो है वो जब कमरा अदालत में पहुंचे तो तकरीबन 5 मिनट रह गए थे समाअत शुरू होने में। तो समाअत शुरू होने से कबल एक ही सवाल उनसे हुआ कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखेंगे। और उसके बाद वो अपने वकील के पास जो है वो जाकर बैठ गए और उसके जो वकील थे सलमान सफदर वो उनको कुछ समझा रहे थे। जिसके बाद जैसे ही जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब जो है वो रोस्टरम पे भी आ गए और जो अल्फाज इमरान खान साहब ने आके इस्तेमाल किए वो बड़े कैलकुलेटेड थे, बड़े जचे तुले अल्फाज थे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब को ये अल्फाज बताए गए थे कि ये आपने जाके रोस्टरम पे कहना है और उसके बाद जो है वो आपने इससे ज़्यादा नहीं बोलना। इसलिए इमरान खान साहब बहुत महदूद
चंद अल्फाज जो है उन्होंने बोले और उसके बाद अदालत ने उनको जो अल्फाज माफ़ी के और जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके पास जाने के हवाले से और वहाँ जाकर माफ़ी मांगने के हवाले से जो उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि आपके इस कंडक्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं और इसीलिए हम जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको 3 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को जो एफिडेविट है वो बयान अल्फी नया आएगा और उसके बाद अदालत उसको देख के अगर फर्दर प्रोसीड करने के हवाले से तय करेगी। हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि कल हम इसमें जो एफिडेविट है वो फाइल कर देते हैं, अदालत कल ही उस एफिडेविट को देख ले। तहम अदालत ने जो 3 अक्टूबर की तारीख जो है वो डाली है। 3 अक्टूबर को अब इस केस का जो फ्यूचर है वो डिटरमिन होगा। जी ठीक है, इसी हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, किस तरह से देखते हैं, 2 बार तहरीरी तौर पे मौका मिला, माफ़ी नहीं मांगी गई और जो इंटरव्यूज़ दिए जाते रहे उसमें भी वो दिफा करने का मौक़िफ़ अपनाते रहे, लेकिन आज उन्होंने ज़ुबानी माफ़ी मांगी है और उनकी माफ़ी को कबूल किया जा रहा है और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी उसे भी मौखर कर दिया गया। क्या ये सब कुछ मेरिट पर हो रहा है आपके ख्याल में? साकिब ने जैसे अभी कहा ना कि डिटरमिन होगा, मेरे हिसाब में तो डिटरमिन हो चुका हुआ है कि इन प्रेमे फिशाए जो लफ्ज़ अदालतों में बोला जाता है कि बादियों नज़र में उन्होंने माफ़ी मांग ली है और वो एक्सेप्ट भी हो चुकी है। अब वो एक कानूनी मरहला है कि एफिडेविट वो देंगे। ये एफिडेविट नई लॉ की जुरिस्प्रूडेंस बनाई गई है कि ये कभी किसी बंदे को इस तरह मौके नहीं दिए गए। क्योंकि हम तौहीन अदालत का केस देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारे सामने दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का केस है, तो वहां बड़ी क्लैरिटी के साथ जब माफी मांगी गई तो उनको सजाएं दी गई। यहाँ पे जब तक इन्होंने माफी नहीं मांग ली, अदालत इन्हें मौका देती रही। वहां पे वो माफी मांग रहे थे और माफी मांगने की तो आदाश में भी सजा हुई। लिहाजा मेरे हिसाब में चूंकि हाई कोर्ट अपनी जगह अपने फैसले करने की मजाज है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने किए, लेकिन ये वाज़ेह फर्क कि इसमें प्यार मोहब्बत शामिल है अदालत की तरफ से एक इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने और उनके वकला ने, मेरा ख्याल है, एक अच्छा फैसला किया कि वो सबको मुश्किल में डालने और अपने आप को कैरियर खत्म कराने वाली बात बन जाती अगर वो माफी की तरफ आज ना आते। यानी कि राना साहब, आप समझते हैं कि एक अच्छी मिसाल कायम हुई है आज इस माफी को कबूल करते हुए? अच्छी मिसाल नहीं कहेंगे आप, ये रियायत दी गई है। अच्छी मिसाल वो होती है जब पहले दिन आगे माफी मांग लेते, गैर मशरूत माफी मांगते, तो ये मिसाल अच्छी होती। ये मजबूरी की, ये मजबूरी, और वो वकला ने समझाया कि खान साहब अगर अब आपने जरा सी कोई और बात इधर उधर की, जैसे उन्होंने कहा मैं 26 साल से, मतलब लेक्चर अगर देने लग जाते तो पता नहीं इन जजों के साथ भी क्या होता। तो वो जो साकिब अभी बता रहे थे कि जच्ची तुली नपी तुली बात की कि इससे ज्यादा बात नहीं करनी, तो उसमें ही उनकी बचत थी। इनको अगर जजेस खुला कर देते कि जी बात करें आप अपनी, तो ये मेरा ख्याल है फिर यहाँ से फैसला करा के जाते, फिर अगले काम ना होते। क्योंकि जो उनकी तकरीर, जिस तरीके से वो आजकल माहौल बना रहे हैं, जैसे कि उनके वाने सदर में, सदर की मौजूदगी में आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई, तो लोगों का ख्याल था कि इनको कुछ थोड़ा सा ठहराव आएगा, लेकिन जो उन्होंने चकवाल में जलसा किया, जो कल लाहौर में लैंग्वेज इस्तेमाल की, जाहिर है कि वो उनका मुखातिब आर्मी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो हैं, सियासी इदारे को तो वो मानते ही नहीं है ना कि पार्लियामेंट में वो ना उन्होंने बतौर वजीर आजम उसे वक़्त दी थी और ना आज वक़्त देने के लिए तैयार है। ये जब नवाज शरीफ नहीं जाते थे पार्लियामेंट में तो इमरान खान सबसे ज्यादा तकरीरें करते थे, और जाते तब भी ये भी नहीं थे। और बतौर वजीर आजम